एग्जामिनेशन के लिए now second type of semiconductor material is that is extrinsic. Extrinsic means impure form, or we can say doped semiconductor. Why doped semiconductor? Because in order to change the properties of intrinsic semiconductor, that is the purest form of semiconductor material, a small amount of some added material, other material is added to it, and the process of adding another material is called as extrinsic semiconductor or doping. Why do we use doping? To increase the conductivity. Okay, and जो impurity add up करते हैं, that is called as dopant. That's why extrinsic semiconductor is also called doped semiconductor or impurities semiconductor. After this, doping increasing the conductivity of the basic intrinsic semiconductor. That's why extrinsic, this one semiconductor basically used for the manufacturing of various electronic devices. I have already told you the example like a diode, transistor, PN junction diode, Zener diode, ये extrinsic semiconductor उसमें use होता है. Now depending upon the type of impurities, whether it's a trivalent or pentavalent, we have two types of extrinsic semiconductor. One is N-type, that is also called donor. P-type means acceptor. Have you noted all these types on your notebook? आपने note कर ली थी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, very first is N-type extrinsic semiconductor. Now before this, what are the types of impurities? हम कौन सी type के impurities add कर सकते हैं? Very first one is pentavalent. Please note down on your notebook. First one is pentavalent atom. See here, this one, pentavalent atom, or we can say material. The impurity material having 5 valence electrons. जिसमें 5 valence electrons होते हैं उसे बोलते हैं pentavalent atom. When this is added to an intrinsic semiconductor, pentavalent material को example दी हुई है, for example antimony, as we know its number, that is element antimony material है. जब इसे pure semiconductor के साथ add up करेंगे, which one is your pure semiconductor? That is intrinsic semiconductor. Then it is called as donor doping. It is called as donor doping. Please note down. Done? Yes, ma'am. Okay. Now, why it is called as donor doping? इसे donor doping क्यों बोलते हैं? Because each impurity atom donates one free electron to an intrinsic semiconductor material. ये जो 5 pentavalent material में मैंने बोला 5 valence electrons होते हैं, ये each अपने हर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं किसे इंट्रिंसिक मटेरियल के साथ. तो मैं अगर सिलिकॉन की बात करूं, आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं, तो 4 ये डोनेट हो गए, तो ये डोनेट कर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डोनर डोपिंग, एंड सच एन इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एज डोनर इम्प्योरिटी. और इस टाइप की इम्प्योरिटी को हम बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी. प्लीज नोट डाउन द की पॉइंट्स. An example of such impurity I have already written here: antimony, arsenic, phosphorus. So these are the examples of pentavalent material, and this creates an extrinsic semiconductor with large number of free electrons. अगर हम pentavalent material use करते हैं तो उसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं, और उस टाइप को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक की, उस टाइप को कहते हैं एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एंड सेकेंड टाइप ऑफ impurity used in this extrinsic semiconductor, that is trivalent. I am writing here, that is trivalent.
valent. Now trivalent means has only 3 valence electrons, जिसमें only 3 valence electrons होते हैं. That type of impurity is called as trivalent impurity, and it is called as acceptor impurity. क्यों? क्योंकि ये accept करते हैं. जो 5 पेंटावेलेंट थी वो डोनेट कर रहे थे, that's why it is called as donor impurity. बट ये क्या करेंगे, इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये एक्सेप्ट करेंगे. हाउ? जब इस ट्राइवेलेंट टाइप की इम्प्योरिटी को आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे, व्हेन दिस इम्प्योरिटी इज एडेड टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट क्रिएट्स मोर होल्स. डोनर में क्या हो रहा था, मोर इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे थे. प्लीज नोट डाउन माय पॉइंट हियर. Here more number of electrons are created, but in trivalent impurity, that is acceptor impurity, more number of holes are created. उसमें क्या होगा, number of holes ज्यादा create होंगे and ready to accept electrons, जो electrons को accept करने के लिए ready. Hence this type of doping is called acceptor doping. And examples of such impurity as gallium, indium, boron. Please note down. Done? Hanji. Yes, ma'am. This one is the example of N-type intrinsic semiconductor. And this one is the example of P-type extrinsic semiconductor. Why? Because the resultant, जो impurity add करके आपके पास material बन रहा है, that is with the large number of holes. उसमें large number of holes create हो रहे हैं. That's why it is called as P-type extrinsic semiconductor. I am again repeating. What is extrinsic semiconductor? We have to add something, impurest form कुछ add up करनी है with intrinsic material जो आपका purest form है उसमें. Why? To create an impurity material, that is impurest form of semiconductor material, और उस type को बोलते हैं extrinsic. Now this type is of divided into two parts. One is N and second is P. N means negative, P means positive. N means number of electrons are more, P means number of holes are more as compared to electrons. That's why जब हम N type use करते हैं तो pentavalent impurity add up करते हैं. Pentavalent means 5 valence electrons होते हैं. तो जो सिलिकॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं इस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ. जब 4 यूज हो गए, 1 आपके पास फिर भी है कि आप उससे भी यूज कर सकते हो, पर ये क्या कर रहे हैं, ये डोनेट कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को. That's why it is called as donor. And इसमें N type extrinsic material में और semiconductor में large number of electrons create हो रही है. That's why it is called N type. But in P type we have trivalent impurity. Trivalent means 3 valence electrons. अब सिलिकॉन की ही बात करते हैं, 4 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 3 यूज हो गए, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है किससे, नंबर ऑफ होल्स मोर क्रिएट हो रहे हैं. नंबर ऑफ होल्स मींस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव चार्ज. अब होल्स है, number of holes, that means positive. P type semiconductor material. Now any question? Yes, I'm waiting. Yes, students, is that clear or any doubt? Yes, ma'am. Clear. Okay, rest all students, Vishal, Sonali. Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. सबसे Clear पहले है. हम बात करेंगे N type extrinsic material. N means अभी मैंने बोला नेगेटिव. नेगेटिव चार्ज मींस नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और N टाइप में होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं. मींस हम बोले कि कंडक्टिविटी के लिए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर बट नो होल्स.
और कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यूज करेंगे. पेंटावेलेंट मींस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और उनकी एग्जांपल्स ये लिखी हुई हैं आपके सामने. phosphorus, arsenic, antimony. Please note down. N-type extrinsic semiconductor material. अब कैसे वर्क करेगा? See this example. सिलिकॉन हमने एक इंट्रिंसिक मटेरियल ले लिया. सिलिकॉन इज योर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4. एंड जो इम्प्योरिटी हमने ऐड अप की दैट इज पेंटावेलेंट. पेंटावेलेंट में कौन सी यूज करी है? आर्सेनिक. प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स. यस. डन. मैम क्या बोला आपने, रिपीट करोगे? कौन सी टाइप स्टडी कर रहे हैं हम? मैम एन टाइप. एन टाइप एक्सट्रिंसिक मटेरियल. एन टाइप मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे कि होल्स? हाँ जी. एन मींस नेगेटिव चार्ज. मैम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे. ठीक है. तो जो एन टाइप एक्सट्रिंसिक मटेरियल है उसे हम डोनर बोलते हैं कि एक्सेप्टर बोलते हैं? मैम डोनर डोनर. और कौन सी इंप्योरिटी ऐड अप करते हैं इसमें? पेंटावेलेंट जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो. और उनमें कौन कौन से मटेरियल आते हैं? आर्सेनिक, एंटीमनी. प्लीज नोट डाउन. and third one is here phosphorus P. ठीक है. क्लियर है सोनाली? यस मैम. अब हमने कौन सी यूज की है इन दिस एग्जांपल? मैंने सिलिकॉन एक इंट्रिंसिक मटेरियल लिया दैट इज अ प्योरेस्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल. इंस्टेड ऑफ जर्मेनियम मैंने सिलिकॉन यूज किया. व्हाई सिलिकॉन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मैंने कौन सी ऐड अप करी है? ये तो आर्सेनिक. क्लियर है अब? यस मैम. ओके. अब आर्सेनिक में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? yes. Pentavalent impurity है. Then how many valence electrons are there? Please respond students. आर्सेनिक पेंटावेलेंट मटेरियल है. पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड अप कर रहे हैं. पेंटावेलेंट मींस हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वेरी इजी क्वेश्चन. 5. अभी देखो ये जो बिल्कुल सेंटर में है दैट इज योर आर्सेनिक मटेरियल. नाउ सी हियर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 एंड 5. क्लियर है? मैम और सिलिकॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 4. यस मैम. तो ये देखो ये सिलिकॉन का है और इसमें कितने हैं? 4. 1 2 3 4. अब जो मैंने इम्प्योरिटी ऐड अप करी उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन नेबरिंग एटम के साथ जो प्योरेस्ट फॉर्म के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ ज्वाइन होके फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड. यू कैन सी ये भी कोवलेंट बॉन्ड बन गया. इसका भी इसके साथ सिलिकॉन के साथ बन गया. इधर भी बन गया नेबरिंग के. इसके साथ भी बन गया. इधर भी बन गया. सिमिलरली यहाँ पे भी 4 जो मेरे पेंटावेलेंट में 4 थे वो डोनेट हो गए किसे? सिलिकॉन के साथ और कोवलेंट फॉर्म बॉन्ड बन गया. 1 इज लेफ्ट. अब 1 रह गया कि नहीं? यस. अब जो एक Yes. आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन था वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह है. दैट इज एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन.
Is that clear? That is the formation of n-type material by adding arsenic material in this into silicon. Arsenic pentavalent impurity मैंने add up करी purest form में. Purest form कौन सी है? Silicon. Purest silicon atom having 4 valence electrons. Arsenic atom add किया, this one 5 valence electron and this one is a impurity atom. अब arsenic atom fits in the silicon crystal in a such a way that its 4 electrons form covalent bond with 4 adjacent silicon atoms. और जो fifth one रह गया, the fifth electron has no chance to form a covalent bond. अब जो मैं ये कह रही हूँ कि ये free electron जो ये रह गया arsenic का fifth one, इसका कोई chance ही नहीं है कि ये किसी के साथ covalent bond बनाए. Such an electron enters the conduction band as a free electron. जो ये free electron रह गया, ये conduction band में enter कर जाएगा. That means each arsenic atom added into silicon atom gives one free electron. And number of such free electrons can be controlled by the amount of impurity added to the silicon. और जो ये free electrons, अब मैं और arsenic impurity add up करूं, उसके भी 4 तो covalent bond बना देंगे, 1 फिर रह जाएगा. ऐसे कितने number of free electrons move कर जाएंगे conduction band में. और हम इन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को, सच फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को हम कंट्रोल कर सकते हैं. कैसे? बाय द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, कि कितनी इम्प्योरिटी ऐड अप करें कि इतने ही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में एंटर हो. सच सिंस द फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्जेस, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज एन टाइप मटेरियल. और जो मैंने इम्प्योरिटी डोनेट करी, this impurity donates a free electron, hence it is called as donor impurity. Now any question? Yes. मैम वो जो सिलिकॉन के साथ ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हाँ जी. साइड में है ये वाले? चारों तरफ. ये वाले? नहीं मैम वो इधर जो है This one? मैम नो. ऊपर जाऊं? ये और ये? मैम वो जो कंडक्शन बैंड में नहीं होते हाँ जी. वो वाले मैम, इनके साथ नहीं वो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड देखो बना सकता. हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ा है सिलिकॉन का. वेट, ये था. इसमें क्या है कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वो 4 इलेक्ट्रॉन्स नेबरिंग के साथ, अपने नेबरिंग एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. और इन कोवेलेंट बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं. हाउ? विद द हेल्प ऑफ सम एडिशनल एनर्जी. जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे. दे कैन इजिली मूव टू कंडक्शन बैंड, एंटर कर सकते हैं कंडक्शन बैंड. यही था. यस मैम. अब हमने क्या किया, यही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का, बट मैंने उसके सेंटर में एक मटेरियल यूज कर दिया, दैट इज इम्प्योरेस्ट फॉर्म पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी सिलिकॉन. सी हियर. क्लियर है? यस मैम. ओके, प्लीज वेट ऑन.
Sorry for the interruption, students. Now see here, pentavalent impurity use की है, having 5 valence electrons and outermost shell of silicon have 4 valence electron. अब जो ये आर्सेनिक के 5 है, उनमें से जो 4 है वो सिलिकॉन के साथ क्या बना रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड. आई एम राइट? नहीं. यस. Yes, ma'am. तो कितने रह गए? 4 यूज हो गए. हाउ मेनी लेफ्ट फ्रॉम आर्सेनिक? सोनाली. हाँ जी सिमरन. 1 जो रह गया वो क्या है? दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन. Yes, ma'am. ऐसी फिर मैं अगर बोलूं कि ये मेरा आर्सेनिक है, लेट अस सपोज दिस वन आल्सो आर्सेनिक, अब ये क्या करेगा? ये फिर सिलिकॉन के साथ 4 यूज कर लेगा, 1 रह जाएगा, फिर से एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा मेरा यहाँ पे. कितने हो गए फ्री? एक ये. अब अगर मैं फिर से बोलूं ये भी आर्सेनिक है, ये भी क्या करेगा? एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट कर देगा. अब जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन मूव फ्रीली. वो फ्रीली कहाँ मूव करेंगे? ये वैलेंस सेल में है तो वो कंडक्शन में ही जाएंगे. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. Clear है? Yes, ma'am. That is your n Yes, type. ma'am. अब क्या हो रहा है? इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3. अभी तो मैंने 3 बनाए, अगर और बढ़ेंगे. अब वो हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? दैट डिपेंड्स ऑन योर अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, कि कितना अमाउंट इम्प्योरिटी का आप एड अप कर रहे हैं. डोपिंग पे, डोपिंग लेवल पे डिपेंड करेगा. डन? Yes, ma'am. यस. रेस्ट ऑल स्टूडेंट्स. Yes, ma'am. Okay. Now, second one is your p-type extrinsic material or semiconductor. We have already discussed in previous slide कि trivalent impurity add up करेंगे. Trivalent means 3 valence electrons और silicon के outermost में कितने होंगे? 4. अब 3 तो जो है आपके trivalent में वो silicon के जो outermost shell में है उनके साथ covalent bond बना लेंगे. बट जो एक रह गया, जो वेकेंट एक रह जाएगा, वो होल का काम करेगा यहाँ पे. दैट्स व्हाई पी टाइप में जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी एड अप करी जाओगे उतने ज्यादा होल्स क्रिएट हो जाएंगे. होल्स मींस पॉजिटिव चार्ज एंड दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो ट्राइवेलेंट में कौन कौन सी होती है? बोरॉन हो गया, इंडियम, Boron. गैलियम. यस. पी टाइप सेमीकंडक्टर. ये ठीक है. अब ये बोरॉन में कितने हैं? 3 है. 3 यूज हो गए सिलिकॉन के साथ. अब जो सिलिकॉन का 4th वन एक रह गया जो किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा. एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्रिएट्स अ होल. वो होल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे. Done, students? Yes. That is p-type extrinsic semiconductor. Now, any question up to this point, then tell me. हाँ जी. Rest all students, Vishal, Sonali. Yes, ma'am. Clear है? Sonali. Yes, ma'am. Clear है.